بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کامران بھائی، اب ہم جو ہے وہی عربی کے مولد کا جو درس السادس تھا، چھٹا سبق، اس کی مشق نمبر 5 کے اس پورشن میں ہم ہیں کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہاں پر ہم تھے، اب اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے بھائی، ایک اسٹوڈنٹ آ بھی گئی ہمارے ساتھ، ورنہ میں اور کامران بھائی پڑھ رہے تھے، اور ہم نے یہی سوچا کہ ہم یہی ریکارڈنگ پھر آگے شیئر کر دیں گے۔ جی کامران بھائی، پہلا پڑھیں۔ کیا لڑکا کھڑا ہے؟ ہاں، عربی بنائیں۔ حلیل کیا حل لگائیں گے؟ ہاں، حلیل ولد قائم، حلیل ولد، کیا حلیل حلیل، ولد قائم، ہاں، حلیل ولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ یہ ہو گیا۔ نہیں وہ بیٹھا ہے۔ بالکل، حلیل ولد قائم کی جگہ کیا ہوگا؟ نہیں وہ بیٹھا ہے، نہیں کہ لا لگ جائے گا، لا ہوا جالس۔ دوبارہ ایک منٹ، ذرا میں اس کو لکھنا بھی چاہ رہا ہوں۔ حلیل ولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ یہ عربی بنائی آپ نے۔ اب جی کامران بھائی، اب آپ بولیں نہیں وہ بیٹھا ہے، نہیں وہ بیٹھا ہے، کیسے بولیں گے؟ ہوا جالس۔ اچھا، یہ شاباش، لا، اس کے بعد کیا آگے؟ ہوا جالس، ہوا، اور پھر ہے جالسن، ٹھیک ہے، نہیں وہ بیٹھا ہے۔ اور اس کو بھی کہہ سکتے ہیں لا ہوا قاعد، قاعد۔ چلو آگے کیا ہے؟ کیا لڑکی بیٹھی ہے؟ اچھا، اب یہ سوال میں چلے ان سے کر لیتا ہوں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہاں، ان میں ایک ہیں، اچھا، لبنہ جبین۔ لبنہ آپ بتا دیجئے، کیا لڑکی؟ حلیل بنتو جالستن، حلیل ابنتو جالستن۔ دوبارہ ایک منٹ، دوبارہ بولیے گا، کیا کہا آپ نے؟ حلیل ابنتو جالستن۔ صحیح ہے، حلیل ابنتو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جالیستن، یا پھر حلیل بنتو بھی آ سکتا ہے، بنتو یہ بھی آ سکتا ہے، حلیل بنتو جالیستن یا حلیل ابنتو جالیستن۔ اچھا، صحیح بنایا۔ اب اس کے جواب دیں۔ نہیں وہ کھڑی ہے، سوری، نہیں، وہ مسٹیک ہے یہاں۔ آپ نے دوبارہ عربی بنایا، کیا لڑکی کھڑی ہے کی جالیستن کیوں ہوگا؟ کیا لڑکی کھڑی ہے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے جالیستن کہہ دیا، جالیستن کو بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ ہاں، میری بھی توجہ نہیں رہی ہے نا، اگر ایسی کوئی مسٹیک ہوئی تو توجہ دلا دیا کریں، اصل میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور ساری طرف دھیان ہوتا ہے نا۔ ہاں، کیا بیٹھی ہے لکھا ہوا ہے؟ بیٹھی ہے سر، جی سر۔ بنتو، ہاں، کیا لڑکا کھڑا ہے اور کیا لڑکی بیٹھی ہے، صحیح ہے، پھر آپ نے صحیح بنایا، حلیل بنتو جالیستن، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، نہیں وہ کھڑی ہے، کیسے کہیں گے؟ لا ہیا قائمتن۔ یہ ہوئی نا بات، دیکھیں یہ اس طریقے سے اگر آپ نے کر لیا نا کہ آپ کو ہیا لگانا ہے، قائمتن تا لگانی ہے، ہوا کہاں لگانا ہے، ہیا کہاں لگانی، یہ اصل فائدہ ہے اس کا۔ لا ہیا قائمتن، نہیں وہ کھڑی ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد میں چاہوں گا کہ سعدیہ آپ پڑھ لیں اگلی مثال۔ حلیل ولدان حاضر، اردو کیا دو لڑکے، کیا دو لڑکے حاضر ہیں؟ ہاں، حلیل ولدان حاضر۔ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے ولدان نہیں ہوتا، ولدانی ہوتا ہے۔ تثنیہ میں ہمیشہ زیر آتی ہے، حلیل ولدانی، کیا دو لڑکے، تو آگے کیا ہوگا؟ حاضرن، نہیں، حاضرانی۔ جب دو کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بات ہے کہ ولدان تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، آنی یا عینی پڑھا ہے ہم نے، ہے نا، تثنیہ کے لیے۔ تو حلیل ولدانی حاضرانی، کیا دو لڑکے حاضر ہیں، اس طرح ہوگا۔ دوبارہ بول کے بتا دیں ساتھ ہی، آپ پڑھ کے اعراب میں بس آپ تھوڑا پڑھنے میں مسٹیک۔ حلیل ولدانی حاضرانی، یہ ہے انداز، اس کو یاد کر لیں، اب آپ نے اسی طرح بولنا ہے۔ اچھا جی ہاں وہ دونوں حاضر ہیں، کیسے کہیں گی؟ نعم، اب ولدانی، اب ولدانی نہیں آئے گا، اب اس کی جگہ کوئی پروناؤنس آ جائے گا۔ اچھا ہوا، چلے میں لکھ رہا ہوں ہوا تو ایک کے لیے آتی ہے، نہیں ہوا نہیں سر، ہم آئے گا، چلے ہم لکھ رہا ہوں، ہم تو جمع کے لیے آتا ہے، یہاں تو دو کی بات ہو رہی ہے۔ میں کنفیوز ہو گئی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ۔ اچھا اسی طرح تو انسان سیکھتا ہے نا۔ نعم ہما، جی ہاں وہ دونوں۔ اب آگے بولیے، حاضرانی، حاضرانی، ہما حاضرانی، یہ ہوئی بات۔ اچھا اب اس کے بعد اگلا، کیا وہ لڑکیاں ایماندار ہیں، یہ ثنا بتائیں گی۔ کیا وہ لڑکیاں جب کا اس کا مطلب جمع ہوگی اور مونس کے ہے، یہ مونس کی جمع بنے گی، تو سوچ کے بنانا، کیا وہ لڑکیاں ایماندار ہیں، یعنی یہاں پر آپ ضمیر استعمال کر سکتی ہیں مونس کی،
जमा मोन्नस की जो ज़मीर है वो आप यूज कर सकती हैं। क्या वो लड़कियां ईमानदार हैं? हल इब्नतुन, मैंने कहा नहीं, ज़मीर ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो क्या है कि ज़मीर का मतलब हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, तुम, इनमें से कोई एक, तो क्या आ सकता है? वो सब लड़कियां, वो सब औरतें। उसके लिए क्या पढ़ा था हमने? अच्छा उसके लिए वो हल सोचें सोचें। हल नहनु, नहनु का तो मतलब हम था, यहाँ हम कह रहे हैं वो सब, वो लड़कियां नहीं, वो सब औरतें, इसकी बात हो रही। हुन्ना हुन्ना सही, हल हल हुन्ना, हुन्ना, हल हल हुन्ना, हुन्ना आगे क्या है? हल हुन्ना इब्नतानी, है हल हुन्ना तो हो गया, चले ये। इसके बाद आपने क्या कहा? हल हुन्ना के बाद हल हुन्ना इब्नतानी, हल हुन्ना नहीं, देखें इब्नतानी आप कहने की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब ही हो गया वो लड़कियां, ठीक है ना। हल हुन्ना, अच्छा, क्या हल वो लड़कियां या इब्नतुन, क्या वो औरतें या क्या वो मोन्नस, ये आ गया हल हुन्ना। अब आगे बोले, आप आगे बढ़ जाए। हल हुन्ना इब्नतुन, नहीं, अब आपने देखें अरबी बनानी है ईमानदार की, क्या वो लड़कियां ईमानदार हैं? तो ईमानदार की बनाए। ईमानदार का मतलब नहीं मिला था मुझे। नहीं मिला था, चले कामरान भाई आप बता सकते हैं ईमानदार के लिए क्या होगा? सादी खातून का तो मतलब सच्ची हो गई, क्या वो लड़कियां सच्ची हैं? ईमानदार के लिए क्या है? बहुत आसान लफ्ज है, बहुत आसान लफ्ज है, किसको पता है? सर मुझे, मैं बताऊं, आप बता अमीनतुन दें। तो नहीं आएगा सर? क्या आएगा? अमीनतुन। अमीनतुन भी आ तो सकता है, अमीन को कहते हैं, अमीनातुन आ सकता है, लेकिन देखिए इसको यूं बना दे, हल हुन्ना मुमिनातुन बन गई मिसाल, हल हुन्ना, अच्छा, हाँ हल हुन्ना मुमिनातुन, क्या वो सब ईमानदार हैं यानी ईमान वाली हैं? तो ये मिसाल एक बन गई, यूं बनाएंगे हल हुन्ना मुमिनातुन, क्या वो ईमान वाली है, ईमानदार हैं। अब उसके बाद आप जवाब में पढ़ें, जी हाँ सर क्या होगा? सवाल जवाब में दो लड़कियों का जिक्र है, तो सवाल में भी हम दो का नहीं कहेंगे? जवाब को देखते हुए तो हम कह सकते हैं, सही कहा आपने, लेकिन चलें अब हमने इसको जमा में बिल फर्ज समझे, ये समझा हमने क्योंकि सवाल में दो नहीं लिखा हुआ था। क्या वो लड़कियां ईमानदार है ना? अब जवाब पहले तस्निया वाला बना ले, फिर हम जमा, पहले जमा वाला बना ले, फिर हम तस्निया वाले पे भी आ जाएंगे, ठीक है, दो वाले पे आ जाएंगे। अब इसी का जवाब क्या होगा? हल हुन्ना मोमिनातुन, सना आप ही बताएंगी, हल हुन्ना मोमिनात का जवाब दें, जमा में जवाब देना है, जी हाँ वो सब ईमानदार है। जी नाम, नाम लिख दिया, हुन्ना, सही है, नाम हुन्ना, आगे नाम हुन्ना मुमिनातुन, सही है, इब्नतुन। मुमिनातुन। आज ये तो जवाब तो सवाल में ही था असल में, नाम हुन्ना, बिल्कुल सही कहा आपने, नाम हुन्ना मुमिनातुन, जी हाँ वो सब ईमानदार हैं, ये हो गया। अब जो लुबना ने बात कही कि बात तो सही है इनकी कि देखें जवाब आ रहा जी हाँ वो दोनों ईमानदार हैं, तो चलें अब हम दोनों वाला बना लेते हैं, सवाल भी दोनों वाला बनाए। लुबना अब आप ही जवाब देंगी, क्या वो दो लड़कियां ईमानदार हैं? जी हाँ वो दोनों ईमानदार हैं, आप बताएं। हलिल इब्नतानी मोमिन, नहीं सर, हाँ फिर देखें मैंने ये नहीं कहा लगाऊं, आप हुमा इसकी लगाऊं, जगह हाँ ज़मीरे यूज करें, हलिल ज़मीरे। हुमा। अच्छा, हल, हल हुमा मोमिनातुन। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, सोच के बताएं, जब हुमा आ रहा है तो मोमिनातुन क्यों आएगा? अब चेंज आएगा, हल हुमा, अच्छा, क्या वो दोनों, मोमिनतानी। ये होगी ना बात, हाँ मुमिनतानी, हल हुमा मुमिनतानी, क्या वो दोनों ईमान वालियां हैं, ईमानदार हैं? हल हुमा मुमिनतान, ये हो गया सवाल। अब इसका जवाब भी बताएं, जी हाँ वो दोनों नअम ईमानदार हैं। हुमा अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोमिनतानी, नअम नाम हुमा 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 मोमिनतानी। मुमिनतानी, सही कहा आपने, ये तस्निया वाला भी बन गया। चले इस बहाने हमने दो चीजें सीख ली। अच्छा, क्या औरतें सच्ची हैं? ये बताएं सादिया आप, क्या औरतें सच्ची हैं? हलिन निसाइन सादिकतुन, अच्छा देखें कहीं कहीं हम आ भी लगा देना, अन निसाऊ या हलिन निसाऊ, हाँ अन निसा हलिन हल भी आ आइन सकता है निसा या फिर आ भी आ सकता है। उसके बाद क्या कहा आपने? अन निसाऊ, आइन निसाइन इन निसा, इन क्यों होगा? मुब्तदा को पेश आती है, हमने पढ़ा था इन निसाऊ सादिकतुन। सादिकतुन। अच्छा चले मैं लिखता हूँ सादिकतुन। एक और ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है? सादिकीना, सादिकीन, सादिकीना तो मुज़क्कर के लिए आता है, मुन्नस के लिए कैसे हो सकता है? सादिकतैन, सादिकतैन भी नहीं हो सकता, ये भी दो के लिए आता है, ये तो जमा है। सोच के, हलिन निसाऊ सादिक सादिक, सादिकूना, सादिकूना भी मुज़क्कर की जमा के लिए आता है।
अब बताएं अब आप, यही तो प्रैक्टिस कर लीजिए ना हमें, ताकि हमारी सही तरीके से अंदाज में हो जाए। हाँ हलिन, चले कोई और स्टूडेंट बता सकती है? सना आप बता दें क्या हो सकता है? खातून सर, सादी अच्छा चलें, ये किसने बताया है? लुबना सर। हाँ सही बताया आपने, शाबाश। हलिन निसाउ सादिकातुन, असल में बात ये है कि औरतें जमा है, ठीक है ना, तो क्योंकि निसा जमा मुकस्सर था तो सादिकातुन वाहिद मुन्नस आ सकता है। अगर वाहिद मुन्नस के ऑप्शन में हम नहीं जाते तो जमा मुन्नस ही आएगा ना, जमा मुज़क्कर तो नहीं आ सकता। तो दो तरीके, सादिकतुन भी आपने पढ़ाया था। तो वो तो मैंने सही कहा ना आपको, जो आपने बनाया वो सही कहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है। आपने जो कहा वो सही जवाब दिया है, अइन निसाउ सादिकतुन या फिर अइन निसाउ सादिकातुन, ये मकसद था मेरा पूछने का। सादिकातुन आएगा और आएगी भी दो पेशियां, क्या औरतें सच्ची हैं, क्योंकि मोनस की जमा है। अब जवाब आप ही दीजिए सादिया, जी हाँ वो सच्ची है, अब वो बोलकर जवाब देना है। नाम हुन्ना सादिकातुन। देखिए बात, नाम हुन्ना, नाम अब हिया हम सादिका तो नहीं है। देखिए नाम हुन्ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, नाम हुन्ना एक मिनट, देखिए इस तरह इंसान का दिमाग चल रहा होता है ना। नाम हुन्ना सादी खातून, आपने ये कहा सादिया ने, ये जवाब बिल्कुल सही है, हुन्ना पीछे औरतें जमा हैं तो उसके लिए हुन्ना आ गया, लेकिन क्योंकि पीछे जमा मुकस्सर है तो जो अभी मुझे एक और स्टूडेंट की आवाज आई कि उन्होंने कहा क्या हिया नहीं हो सकता, तो हिया हो सकता है। नाम हिया सादी खातून, यानी जो हिया जमा, हो- हाँ हो सकता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जमा मुकस्सर है ना पीछे, तो जब वो जमा मुकस्सर को रेफर कर रहा हो, उसकी तरफ लौट रही हो, ये जमीर हिया, हिया जमीर क्योंकि ये पीछे इसकी तरफ निसा की तरफ जा रही है तो वाहिद मुन्नस हो सकती है। जब इसके लिए खबर वाहिद मुन्नस आ सकती है तो जमीर भी वाहिद मुन्नस लौट सकती है। तो लिहाजा ये दोनों ऑप्शन सही है, नाम हिया सादिकातुन या फिर नाम हुन्ना सादिकातुन, क्योंकि जमा मुकस्सर है। यहां तक ये 5 हमने पॉइंट पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम मजीद आगे बढ़ें। चलिए भाई 5 के बाद अब है छठा। छठे में मैं चाहूंगा कि कामरान भाई आप पढ़ लें जरा बुलंद आवाज से, पॉइंट नंबर 6। क्या कहा आपने? पहले उर्दू पढ़ लें जरा, उर्दू पढ़ लें। हाँ अच्छा मैं लिख देता हूँ, फिर देखते हैं भाई सही है गलत है क्या है। हलिल मुअल्लिमु और उसके बाद है गायबुन। क्या भाई इन्होंने सही कहा है गलत कहा है, कौन बताएगा? हलिल मुअल्लिमु गायबुन। हाँ भाई इन्होंने सही अरबी बनाई है नहीं बनाई? क्या मुअल्लिम गायब है? ऑनलाइन जो स्टूडेंट है आप में से पूछ रहा हूँ मैं, बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें कि भाई इन्होंने गलत बनाई है। नहीं सर, हमें तो नहीं सही लग रहा है। सही लग रहा है? सबको सही लग रहा है या किसी के जहन में कोई सवाल है तो बता दें भाई इस तरह नहीं ऐसे अरबी बनेगी। चलें आवाज नहीं आ रही। गायबिन। गायबिन, देखें हमेशा याद रखें कि मुब्तदा और खबर को पेश आती है, ये हम इत्तेफाक कर चुके हैं। लिहाजा गायबिन कैसे हो सकता है जब तक लैसा या बा नहीं लग रहा, लैसा के बाद बा आएगी फिर लगेगा ना गायबिन, जब नफी का जुमला होगा उस वक्त आएगा, वरना इसको पेश ही पढ़ना है आम हालात में। हलिल मुअल्लिमु गायबुन, तो कामरान साहब ने बिल्कुल सही बताया। अब आप बताइए जवाब। नहीं मुअल्लिम हाजिर है। हाँ ला मुअल्लिम हाजिर। अच्छा आप अल नहीं लगाना चाह रहे हैं यहाँ? अल लगा दें या लगाना चाहिए? क्योंकि ये मुब्तदा है तो अल आएगा ना भाई। ला अल मुअल्लिमु आगे क्या है? हादिरुन। चलें क्योंकि किताब से देख रहे थे, ये स्क्रीन की तरफ नहीं थी तवज्जो, इससे मैं लिख रहा था। ला अल मुअल्लिमु हादिरुन, नहीं बोल के रुक गए। अल मुअल्लिमु हादिर, उस्ताद हाजिर है। बस इनको पेश पढ़ना है आखिरी में, ये ध्यान में रखें आम हालात में। जब वो कोई खास कंडीशन आएगी जैसे इन्ना आ रहा है वो, तो उसके अलग कायदे। क्या वो बड़ई हैं और इन्होंने बता दिया जमा में आपने बनाना है, ये लिख भी दिया तो कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं हो रही यहाँ कि जो है वो ये दो है या जमा है या क्या है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। क्या वो जमा बड़ई हैं? अब बताएं भाई, ये बताएं सना आप, क्या वो बड़ई हैं और जमा में बनाना है, मुजक्कर की जमा बनानी है, जमीर लगानी है? जी क्या होगा? सर ये हल हाँ हल हम हल हुम, हल हम नज्जारुन। नज्जारुन, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो हुम की जमीर जमा है और नज्जार वाहिद है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मुब्तदा जब जमा होगा तो इसको भी हमें जमा में बनाना है। तो नज्जार की मुजक्कर की जमा क्या आती है? नज्जार नज्जारुना।
हाँ तो बस यही आएगा। शाबाश, सही बताया आपने, देखा इस तरह दिमाग चलाना। शाबाश, बिल्कुल सही अरबी बनाई आपने। हल हुम नज्जारूना, रूना क्या वो सब बड़ई है। अब इसके बाद हम इसको नहीं वो दर्जी हैं। अब आप बनाएं। ला ला हुमुल खय्यातुन। देखें फिर सोच के बताएं। खय्यातुन में लिखूंगा ना तो ये वाहिद हो जाएगा, हुम जमा। खय्यातुना लाहुम खय्यातूना, नहीं वो सब दर्जी हैं। ये सही बनाया आपने, अरबी सही बनाई, शाबाश। क्या वो यूसुफ है। अब सादिया आप बताइए, क्या वो यूसुफ है। हल हुआ यूसुफ। हाँ सही है। आ हुआ यूसुफु, हल भी आ सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज रहे। आ हुआ यूसुफ, क्या वो यूसुफ है। आप जवाब दीजिए। हुआ, जी हाँ वो यूसुफ है। नाम हुआ यूसुफ। नाम, इसके बाद क्या है। नाम हुआ यूसुफ। हुआ हाँ हुआ यूसुफ। हुआ यूसुफ, जी हाँ वो यूसुफ है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। नाम हुआ यूसुफ, जी हाँ वो यूसुफ है, ये भी हो गया। क्या तू महमूद है लुबना। अंता महमूदुन। ये हुई ना बात। एक तो आ हो गया, फिर ये अंता जमीर का अंता। आपने क्या कहा। महमूदुन। महमूदुन, ये हुई ना बात। क्या आप महमूद हैं। महमूदुन। अब उसके बाद जवाब पढ़ें। नहीं मैं हामिद हूँ, कैसे कहेंगे आप। ला अना हामिदुन। सही बता रहे भाई आप लोग। ला अना हामिदुन, ये बात है। नहीं मैं हामिद हूँ। आगे चलते जाएं। क्या मकान पुराना है। अपना कामरान भाई आप बता दें। पॉइंट नंबर 10, क्या मकान, ये भी ना बात। हलिल बैतु, आगे क्या कहा आपने। कदीमुन, क्या घर पुराना है। कदीम कहते हैं पुराने को। हलिल बैतु कदीम, आप जवाब दें। ला अल बैतु जदीद। ला अल बैतु जदीदुन, नहीं घर नया है। मकान का मतलब जो होता है वो घर ही, ठीक है ना। वैसे अरबी में मकान का मतलब होता है जगह, कोई भी जगह, वरना घर के लिए बैत या दार आता है। ला अल बैतु जदीद। अब इसके बाद जो है आगे पढ़े। 11वां हम पढ़ते हैं। क्या वो औरतें दर्जने हैं। ये बताएंगी सादिया। क्या वो औरतें, इसका मतलब वो सब औरतें, मतलब जमीर लगानी है आपने मोनस की जमा की। अब आप बताएं। आवाज आ रही है हमारी। मैं बोलूं? जी सर मैं बोल दूं? हल हाँ हाँ आप बोल दें। अच्छा हल हुन्ना खयातीना। देखें हल हुन्ना हो गया। अब आप सोच के बताइए अपना सना, क्या वो दर्जने हैं। अब देखें दर्जने खयातीना या खयातूना मुजक्कर की जमा थी। अब मोनस की जमा सोचें आप। हल हुन्ना, मोनस की जमा क्या आनी चाहिए। जमा मोनस हल हुन्ना। खयातानी। खयातानी तो दो के लिए आता था, जमा के लिए क्या आता है। खयात खयात तक तो सही है, आगे क्या एडिटिंग होगी ये आपने बताना। खयातानी खया हल हुन्ना खया। कामरान भाई आप बता सकते हैं क्या वो दर्जने बोले। क्या कतुल। देखिए खैया ततुन कहेंगे तो एक के लिए हो जाएगा। अब खैया ततुन की जमा क्या थी मोनस की। हुन्ना तो जमा है ना, तो जमा मोनस की आएगी यहाँ पर। हल हुन्ना खय्यातातुन। खैया तातुन आएगा, इस तरह आएगा। सही बताया लुबना ने कि यहाँ पर क्या आएगा। खैया तातुन, हल हुन्ना खैया तातुन। मोनस की जमा को याद रखें, खैयात के एंड में अलिफ और ता लगाएंगे, मोनस की जमा बन जाएगी। क्या वो औरतें दर्जने। अब आप जवाब दें। नहीं वो उस्तानिया है, कैसे कहेंगे आप। सना ही बताएं। ला हाँ ला ला हुन्ना मुअल्लिमातिन। मुअल्लिमातुन, मैंने ये भी बताया था ना, जब नॉर्मल कहना है बगैर इन्ना बगैर लैसा कुछ भी ना आ रहा हो तो मुअल्लिमातुन पेश पेश में रखना है। लाहुन्ना मुअल्लिमातुन, नहीं वो सब औरतें मुअल्लिमात हैं, ये होगा। अब इसके बाद हम मजीद आगे बढ़ रहे हैं। देखें ये माशाल्लाह पॉइंट नंबर 11 तक हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, और वो है 12 से लेकर एंड तक 14 तक। अब इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 12 में तुम आलिम हो या जाहिल, इसके अंदर आपने क्या लगाना है। क्या तुम आलिम हो या जाहिल, ये याद रखें, अरबी में ये लगेगा। तो कौन बनाएगा इसकी अरबी, कोई बता सकता है। तुम आलिम हो या जाहिल। जी जमा में बनाना है। हाँ जमा में बना के बताएं। बताएं। हाँ हाँ जमा में बनाना है, क्योंकि आगे जवाब जमा में आ रहा है। अच्छा जमा में आ रहा है।
तुम है ना सर, तुम लिखा हुआ है ना, वो नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, ये देखें, ये मैं हटा रहा हूँ। देखें, तुम आलिम हो या जाहिल, जवाब देखें हम जाहिल नहीं है तो हम अंतुम हाँ हल अंतुम आलिमूना औ जाहिलूना। वाह भाई वाह। हल अंतुम, आगे क्या कहा आपने? आलिमूना, बिल्कुल सही कहा। अंतुम के साथ भी आलिमून आएगा क्योंकि अंतुम जमा के लिए। औ जाहिलूना। अब इसके लिए औ कह दिया आपने, और उसके बाद क्या आ गया? औ जाहिलूना। औ का मतलब होता है या। क्या आप सब आलिम हैं या जाहिल? हल अंतुम आलिमूना औ जाहिलूना। इस औ की जगह अम भी आ सकता था, अम जाहिलूना, दोनों आ सकते हैं। अब आप जवाब दीजिए हम जाहिल नहीं है। ये है बड़ा जबरदस्त, हम जाहिल नहीं है। कौन बताएगा? बताइए आप, पहले आप कोशिश कर लें लुबना। अलैसा अंतुम मैं जाहिलून। बताऊं सर? हाँ अलैसा हाँ, आप अंतुम ही। जाहिलून। अलैसा तो आ ही नहीं नहनु सकता ना। बिजाहिलीना। अच्छा, दोबारा बोले। नहनु हाँ, बिजाहिलीना। नाहनु भी जाहिलीना आपने कहा, तो इसमें नफी का तर्जुमा कहाँ है? बिजाहिलीना। इसमें नफी का तर्जुमा माँ। कहाँ है? नाहनु भी जाहिलीना। हाँ सोचें नहनु बिजाहिल। क्या कहेंगे। जी जी, क्या कहा सादिया आपने? वो पहुंच सर गई सर आप। मैं बताती माँ। हूँ। वो लईसा की जो गर्दान होती है ना, उसमें जो ना आता है। हाँ, तो कैसे कहेंगे? बोल के बताएं। देखें, एक तो चले लयसना पहले आप, बिजाहिलीना। ये आपको याद आ गया। लियसना लेकिन देखें, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पहले माँ वाला लगा लें, आसान है। पहले माँ लगा दें, माँ नहनु, ये हो गया। अब आगे देखें, बी जाहिलीना, ये आ गया। खबर के साथ बा भी आ गई, वो वाला भी कायदा लग गया। मा नहनु बिजाहिलीना, हम जाहिल नहीं है। सब बोल रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे अरबी में? और दूसरा जो होता है ना, जो मैंने कहा था कि लईसा की गर्दान होती है, अगर हमें कहना हो ना कि हम जाहिल नहीं है लईसा लगाकर, तो उसको अरबी में यूं कहते हैं, लसना। ये मुझे जरा याद दिलाइएगा, तो मैं वो गर्दान भी लिखी भी भेज दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। लसना बिजाहिलीना, लसना का मतलब है हम नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लसना का मतलब हम नहीं है। ये जब लईसा की गर्दान पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। लसना भी जाहिलीन, हम जाहिल नहीं। मा नहनु भी जाहिलीन, ये ज्यादा आसान है, हम जाहिल नहीं है। लेकिन अक्सर तलबा पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट इस मिसाल में आते हैं ना, तो यूं कहते हैं मा नहनु भी जाहिलिन, लसना भी जाहिलिन, वो वाहिद लगा देते हैं। वाहिद नहीं आएगा, जमा आएगा, यहाँ ये याद रखना है। लसना भी जाहिलीना, मा नहनु भी जाहिलीना। बोल लें इसको, जरा दोहरा लें आप लोग। लसना भी जाहिलीना, लसना मा बिजाहिलीना। नहनु भी जाहिलीना। नहनु बिजाहिलीना। अब है सवाल सादिया से, क्या हाथी एक शानदार जानवर नहीं है? क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, अब आप बना के बताएं जरा। और यहाँ आ इस्तेमाल कर दें। हाँ, आ सही है, सही कहा आपने, आ। अलैसल फीलुल हैवानुल अजीम। अलैसल फीलू, एक पेश रखनी है क्योंकि अल आ गया है। अलैसल फीलू, अब जब लैसा आएगा तो बानी आएगी, हैवानुल अजीम। बा भी तो आएगी। लैसा आ रहा है तो सवाल में भी आ गया, तो क्या हो गया? हाँ। बा तो आएगी। अलैसल फीलू बी हैवानुल अजीम। बी हयावान, जब बा आ गई तो फिर हैवान नहीं रहेगा, हैवानीन हो जाएगा। निन। अलैसल फीलू बी बी हैवान हयावानिन निन अजीम। अजीमिन। अब अजीम को भी जेर आ जाएगी, तो ये इसकी सिफत है, जैसे मौसूफ कह रहा है वैसी सिफत कह रहा है। अलैसल फीलू बिहयावानिन अजीमिन। बोलिए सादिया, पढ़ के बताएं कैसे पढ़ेंगे। अलैसल फीलू, इस तरह पढ़ें। अलैसल फीलुल हैवानिल अजीमिन। यूं नहीं कहेंगे। देखें, मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। अलैसल फीलू तो आपने सही कहा, बिहयावानिन अजीमिन। बिहैमानिन अजीमिन। हाँ, और हैवान नहीं, हयावानिन, हयावानिन अजीमिन। या को भी जबर दें, हयावान अजीमिन। ये इस तरह। अच्छा, हयावानिन अब आप ही जवाब दे दें, हाँ क्यों नहीं, हाथी एक शानदार जानवर है, कैसे कहेंगे अरबी में? बला। शाबाश, भला। आगे हाँ क्यों नहीं, उसके बाद अल्फीलु अलफीलू, हैवानिल क्योंकि अजीम। मुब्तदा है तो अल अल्फीलु लगा के बोलेंगे। शाबाश, अलफीलू, सही कहा आपने। अल्फीलु हैवानिन अजीम। अब देखें, जब लैसा नहीं है ना, तो अब दोबारा पेश आ जानी चाहिए जबान पर। अलफीलू हैवानिन नहीं अच्छा। कहेंगे अब हम। हाँ, ये सब चीजें याद हैवानुन रखने की अजीम। होती है ना। अलफीलू हैवानुन, आगे क्या है? अजीमुन। अदीमुन। अजीम पे भी रोक सकते हैं सर। हाँ, अदीम पे रुक सकते हैं। भला अलफीलु हैवानुन अजीम, इस तरह करते। अलफीलु हैवानुन अजीम। बोलने इसको, भला अलफीलु बोले। बला अल्फीलु हाँ, हैवानुल अजीम। हैवान नुन नहीं कहेंगे, हैवान नुन कहेंगे, बस ये याद रखिएगा। सही कहा आपने। हैवानुल अजीम। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद एक कुत्ता खड़ा है या बैठा? सना आप बताइए। हल हल हाँ। कल्बुन काइमुन। देखें, हल कल्बुन अगर आप कहेंगी ना, देखें तो एक शर्त रह जाएगी, मुब्तदा के ऊपर अल आनी चाहिए।
अल आना चाहिए ना इसके ऊपर, हलिल कल्बु कहेंगे। हलिल कल्बु काइमुन हाँ औ काइमुन जालिसुन। औ जालिसुन सही है भाई, बिल्कुल सही अरबी बनाई है, जालिसुन, शाबाश। हलिल कल्बु काइमुन औ जालिसुन। अब जवाब दीजिए, कुत्ता खड़ा नहीं बल्कि बैठा है, आप ही जवाब दें। बल्कि का क्या था? वो अभी बता देते हैं आपको, पहले सीधा ये जुमला बनाया, कुत्ता खड़ा नहीं है, ये कैसे बनेगी अरबी? अच्छा लैसा सही है, ये देखें मैं लिख रहा हूँ, लैसल कल्बु, लैसल कल्बुन काइमुन। अब देखें बा लगा दिया करें जब भी लैसा आता है, लैसल कल्बु बि काइमिन, बोलिए दोबारा बोले, लैसल कल्बु बि काइमिन। हाँ काइमिन, लैसल कल्बु बि काइमिन। अब इसको बहुत आसान है, बल्कि को कहते हैं अरबी में बल, सिर्फ बल बोलते हैं, बल। बल्कि वो खड़ा है, अब आप बताएं वो, बल्कि वो बैठा है, आपने यूं बनाना है, वो बैठा है, तो वो को क्या कहेंगे अरबी में? भले यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन इस तरह अरबी बना लें, बल नहीं जालिसिन। क्या कहेंगे? बल हुआ जालिसिन। अब देखें जब बल हुआ है ना तो जालिसुन हो जाएगा, क्योंकि अब बा जेर भी नहीं आ रही ना। देखें असल में इसमें क्या मसला हो रहा है, लैसल कल्बु बिकाइमिन, यहाँ तो बा है तो इससे काइमिन आया। अब आगे जब हमने कहा बल हुआ जालिसुन, तो जालिसुन बोला है तो सही बोला है आपने, बल हुआ जालिसुन। और अगर आपने कहा बल जालिसुन, ये भी अरबी सही है, लेकिन अब जेर नहीं आएगी, पेश आएगी, बल जालिसुन। मैंने सर जालिसिन बोला था, जेर दो जेर बोली थी। दो जेर अगर कहा तो गलत कहा आपने, फिर आप दो पेश कहने हैं आपने, बल जालिसुन, इस तरह कहना है आपने। जब बा होगी तो जेर आएगी, बा हटेगी तो फौरन पेश आ जाएगी, ये भी ध्यान में रखना है। चलें, अब ये यहां तक हमने इसको कर लिया, और जो है वो अब हम मजीद है, कंप्लीट हो गया ये, माशाअल्लाह, देखा आपने। तो आज आप इस तरीके से जो है वो 7वें सबक तक हम पहुंच गए। अच्छा, कल जो है ना नेट में सब चीजें चल रही है, लेकिन जूम की एप्लीकेशन जो है ना बिल्कुल वो हैंग हो गई थी, और वो कल बड़ी कोशिश की मैंने, वो चल नहीं रही थी, तो इस वजह से फिर हमने मजबूरन क्लास को खत्म किया। 5-10 मिनट। अब हम आते हैं इंशाअल्लाह ताला इलल हिवार, अरबी कन्वर्सेशन की तरफ जाते हैं। मैं इस रिकॉर्डिंग को अब खत्म कर रहा हूँ।